1 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान, एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 15 चैप्टर 29 वर्स से 16 चैप्टर 1 वर्स टू 12 वर्स, एक्सोडस 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 29 वचन से 16 अध्याय 1 वचन से 12 वचन तक। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। तेरा वचन हमारा दोस्त बनने दे खुदा। तेरा वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो लहू में जिसके कपड़े भिगोए गए, वो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन उसका नाम है। तेरे वचन से हमारी दोस्ती करा मेरे परमेश्वर। तेरे वचन पर हमारा मन लेकर आ। तेरे वचन के अधीन आज्ञा पालन में रहने के लिए हमारे ऊपर तेरी अनुग्रह को बढ़ा। तेरा आत्मा तेरे वचन के संगति में हमको बनाए रखे। तेरे वचन हमारी सोच बनने दे, हमारी समझ बनने दे। तेरे वचन हमारे जहन में उतर कर आने दे, हमें समझ में आने दे। तेरे वचन हमारे मार्ग, हमारे समयों को उज्ज्वलित करने दे। तेरा वचन हमारी ताकत बनने दे। तेरा वचन हमारा मार्गदर्शन बनने दे। तेरे वचन से पिता परमेश्वर हमको प्रेम करा। तेरे वचन से हमको पिता दिलो जान से तेरे वचन को पहला परमेश्वर पिता पहले प्रेम से पिता सराहने के लिए हमारी सहायता कर। अब फादर गॉड, नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 15 चैप्टर 29 वर्स से पढ़ते जाएंगे। एंड जीसस डिपार्टेड फ्रॉम देंस एंड केम नाई unto the sea of Galilee and went up into a mountain and sat down there. And great multitude came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and he healed them. Insomuch that the multitude wondered when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see, and they glorified the God of Israel. Then Jesus called his disciples unto him and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now 3 days, and have nothing to eat, and I will not send them away fasting, lest they faint in the way. And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude? And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, 7, and a few little fishes. And he commanded the multitude to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled, and they took up of the broken meat that was left 7 baskets full. And they that did eat were 4,000 men, beside women and children. And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala. Chapter 16, 1 verse से 12 verse तक पढ़ेंगे। The Pharisees requires a sign. Leaven of the Pharisees and Sadducees, etc. First verse से पढ़ेंगे। The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven. He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather, for the sky is red, and in the morning it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times?
A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? Do ye yet not understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000, and how many baskets ye took up? Neither the 7 loaves of the 4,000, and how many baskets you took up? How is it that ye do not understand that I speak it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Thank you, Jesus. मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 29 वचन से पढ़ते जाएंगे, 16 अध्याय का 1 वचन से 12 वचन तक। अनेक रोगियों को चंगा करना, 29 वचन से आगे। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाई। उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। 4,000 लोगों को खिलाना, 32 वचन से आगे। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियां और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4,000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। स्वर्गीय चिन्ह की मांग, 16 अध्याय पहले वचन से। फरीसियों और सदुकियों के पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा का खमीर, 5 वचन से आगे। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं?
और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। क्या तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। थैंक यू फादर गॉड। इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।